So today, guys, in this class, we are going to discuss about some rest of the part of the weed management. So last class, we have focused on the what are the methods which you took manage the weeds and control the weeds, like biological, physical, chemical, and other cultural methods. What are there? And we have focused on the important part as it is grass roots. Okay, but that much is sufficient for any students who are going to the weed management and the control methods. Okay, so if it will be a class, then we would discuss very briefly, okay, one by one and slowly. But though we have lack of time, so we are going so fast, so it's not a problem. Okay, so today in this class and last class I ended with the herbicide classification, okay, and their trade name. So sometimes trade name they used to ask, so we need to focus, and in the shortcut we have to remember. Last class I also said the shortcuts how to remember the herbicides and their trade names. So if you have not seen that video, then please visit that video and see. Okay, so let's continue. So okay, so there is a news for you guys. Okay, so the path is not easy. Everyone knows it. So keep going. One day will become the day one. Okay, you know that. I know that the path is not easy. Okay, only we have a lack of time, and we have to complete the syllabus within the time. So it's not easy to complete all the syllabus, but you focus on what are the important topics you want to cover, and exam point of view, you try to finish that and keep practicing. Okay, don't take rest now. After exam you can take rest. So sure, this day or one day will become the day one for you and you will get the success. Okay, so today's first is antidotes. Okay, so what is the meaning of antidotes? Antidotes का मतलब ही क्या होता है, कोई बताएगा? Anyone want to share what is antidotes? कोई बताएगा एंटीडोट्स का मतलब क्या है? So such chemicals that act in against of the poison. ओके, दैट्स करेक्ट. ओके, आप मतलब आपका एक मूवी है नाना को प्रेमा तो, ओके, वहां पे क्या होता है कि लास्ट में वो जूनियर एनटीआर को एक केमिक मतलब एक पॉइजन दे देता है. ओके, और उसको बोलता है कि आप ये फॉलो करके वो जाओ और वो एंटीडोट घूम के लाओ. ओके, और फाइनली ही गॉट द एंटीडोट एंड ही जो इंजेक्ट सो दैट ही विल सर्वाइव. ठीक है, तो एंटीडोट का मतलब क्या है, वो जो पॉइजन जो डाल देते हैं. ओके, तो उसको उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट कैसे होता है उसको हम डिक्रीज कैसे करेंगे. ओके, तो एंटीडोट इज एनी केमिकल और एनी thing which will be reduce or inactivate the toxic effect of any injected chemical or anything. Okay, so it means the chemicals which are used to inactivate the applied herbicides are called as antidotes. For example, हमने क्या किया कि आज paraquat स्प्रे कर दिया जो कि नॉन सिलेक्टिव herbicide है. If you spray, it's gone. Okay, you will not get anything of plant. But if we will spray 1% ferric chloride immediately after spraying the paraquat within 12 hours, then we can survive the plant. So this is one of the most important thing, and many of us unaware. Okay, they don't know. Okay, so if farmers sometimes they did the mistake of spraying paraquat and glyphosate, sometimes by mistakenly what happens, paraquat and glyphosate is such a very toxic non-selective. Suppose I spread the paraquat in a fallow land in a tank. Okay, so if I will not wash it properly and I will spray any insecticide or fungicides, the paraquat effect still there. Okay, so after spraying paraquat you have to clean the equipment very cleanly. Okay, so that there will be no toxic effect to paraquat for the further application. ठीक है, देन आता है हमारा सेफनर्स. ओके, सेफनर्स और प्रोटेक्टेंट्स. ओके, क्या करते हैं अगर कुछ हम डाल दिए तो हाउ सेफ इट विल बी. फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ डालें तो उसका टॉक्सिसिटी इतना ज्यादा है कि मतलब हमारा जो डिजायर्ड प्लांट है उसको भी टॉक्सिक इफेक्ट डाल सकते हैं. इसलिए हमको क्या करना है, एक सेफनर या प्रोटेक्टेंट हमको डालना है. सो सब्सटेंस used for protecting crop plants which are otherwise susceptible or less tolerant to some herbicide, include
a dose is required for good weed control. Okay, for example, naphthalic anhydride 0.5 gram per kg of seed for rice to protect against molinet and alachlor. R27788 soil application protect maize from alachlor and metachlor. So यहाँ पे प्रोटेक्टेंट क्या क्या हुआ, Na and R27788. ओके, ये वाला क्वेश्चन में, ये वाला एग्जाम में आता है. ओके, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सेफनर्स. ओके, आपको क्या कर देंगे, 4 केमिकल का नाम दे देंगे, क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द सेफनर. ओके, और स्टेटमेंट में आ जाएगा द सेफनर्स आर लाइक R27788 नैप्थलीन एनाइड्रेट. तो आपको अगर पता नहीं है तो आप अटेंड कैसे करेंगे. ओके, इसलिए आपको पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि ये वाला है. ठीक है, तो ये वाला क्या करेंगे कि जब हम सीड के साथ देंगे तो दे विल प्रोटेक्ट द क्रॉप, ओके, फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हर्बिसाइड्स. ओके, मोलिनेट आपको जितना मतलब देना है उतना ही डोज में देंगे, पर वो जो डोज है ना वो हमारे क्रॉप के लिए हानिकारक है, इसलिए हमको एक सेफनर और प्रोटेक्टेंट देना चाहिए. ठीक है, एग्जांपल याद रह जाएगा, नाफ्थलिक एनहाइड्रेट एंड R27788. देन आता है हमारा आर्जुवेंट्स. ओके, आर्जुवेंट्स क्या करते हैं, देखिए एक हर्बिसाइड है, हमको अप्लाई करना है, पर हम जब अप्लाई करते हैं ना वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है. ओके, इसलिए हमको क्या करना है, एक चीज डालना है ताकि वो बहुत अच्छे से बहुत इफेक्टिव रिजल्ट लाने के लिए हमको कुछ ऐड करना पड़ता है, उसका हम बोलते हैं आर्जुवेंट्स. ऐड मतलब ऐड होता है. ओके, जो सॉल्वेंट्स में अगर कुछ हम डालते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडजुवेंट्स. सो एडजुवेंट्स आर केमिकल्स एम्प्लॉयड टू इंप्रूव द हर्बिसाइडल इफेक्ट. एक हर्बिसाइड डाल रहे हैं, उसका एक इफेक्ट आ रहा है और हमको और थोड़ा ज्यादा इफेक्ट चाहिए, तो हमको क्या करना है, एडजुवेंट्स डालते हैं. ये सुनो, देखिए एक साइकिल हम चला रहे हैं, ठीक है, वी आर रनिंग ए साइकिल. तो क्या होता है कि दिन में तो वो जंग लग जाते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑयल डालना पड़ता है, ऐसा ना, ग्रीस डालना पड़ता है ताकि वो स्मूथली और इफेक्टिवली चल सके. तो हर्बिसाइड हम दे रहे हैं, रोज ही दे रहे हैं, पर उसका जो इफेक्ट है ना उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है. तो टू गेट सम सेटिस्फैक्टरी इफेक्ट we have to add the adjuvant for any chemicals. So sometimes making a difference between satisfactory and unsatisfactory will control. Okay, फार्मा को अगर आपको satisfactory करना है तो you have to add one adjuvants with that so that the desirable result will be very good. ऐसा ना, अगर साइकिल में ग्रीस डाल दिए तो बहुत ही स्मूथली चलता है, हमको भी बहुत अच्छा लगता है चलाने के लिए. अगर वो साउंड निकालेगा टक 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 टक, अच्छा नहीं लगेगा ना. एक्सपीरियंस, द फर्स्ट एक्सपीरियंस मस्ट बी गुड, ऐसा ना. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, एडजुवेंट्स डालते हैं. देन एडजुवेंट्स कई तरह के होते हैं. ओके, लाइक सर्फेक्टेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स. ओके, डिस्कस करेंगे बहुत क्विकली. ओके, सरफेस एजेंट्स क्या क्या होते हैं, 3 तरह का होता है. वन इज वेटिंग एजेंट, स्प्रेडर्स एंड पेनिट्रेटर्स. वेटिंग एजेंट क्या करेगा, aid in wetting the waxy lip surface with aqueous herbicide spray. Okay, so any herbicide हमको स्प्रे किया वो क्या करेगा, थोड़ा मतलब ह्यूमिक रखेगा, मतलब बहुत आर्द्रता से रखेगा, मतलब वेटिंग रखेगा. उसके बाद क्या होगा, इट शुड बी स्प्रेड प्रॉपर्ली, यूनिफॉर्मली ये स्प्रेड होना चाहिए. ओके, उसको हम बोलते हैं स्प्रेडर्स. देन दैट शुड बी पेनिट्रेट थ्रू द लीव्स so that it can reach to the target site. Okay, so उसको हम बोलते हैं penetrators. Okay, उसको हम बोलते हैं penetrators. Then stabilizing agent. Okay, कोई herbicide हम डालते हैं वो stabilize नहीं होते. Okay, इसके लिए हमको stabilizing agent डालना पड़ता है. For example, emulsifiers. Okay, a substance which stabilizes means reduces the tendency to separate a suspension of droplets of one liquid which otherwise would not mix with the first one. Okay, for example, you can see it substitutes for the constant agitation spray liquid during the field operation. क्या होता है कि कोई हर्बिसाइड ना वो पानी में मतलब उतना सस्पेंशन या उतना सोल्यूबल नहीं होता है, तो क्या करना है, हमको बार बार एजिटेशन करना पड़ता है, उसको ऐसे ऐसे करना पड़ता है ताकि वो सोल्यूबल होकर रहे. अगर हम एक इमल्सिफायर डाल देंगे तो क्या होगा, बहुत इजीली वो उसी कंडीशन में रहेगा, सोल्यूबल फॉर्म में रहेगा, ताकि हमको स्प्रे करने में बहुत ही आसान हो. उसको हम बोलते हैं इमल्सिफायर्स. एग्जांपल आप देख लीजिए 1553, 1559 ABS एंड सॉल्वेट. ठीक है, देन दूसरा आता है स्टेबलाइजिंग एजेंट, डिस्पर्सिंग एजेंट, मतलब डिस्पर्सन,
ठीक है, दे स्टेबलाइज सस्पेंशंस, ओके, दे स्टेबलाइज द suspension. They keep fine particles of wettable powder in suspension in water even after initial vigorous agitation has been withdrawn. Okay? अगर एजिटेशन नहीं किए तो वेटेबल पाउडर जो हम डाले थे वो दबेगा नहीं, सिल्टेशन नहीं होगा और वो ऐसे ही सस्पेंशन फॉर्म में रहेगा, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिंग एजेंट्स. ओके, हमारा कपलिंग एजेंट्स. ओके, कपलिंग एजेंट सॉल्वेंट्स एंड को-सॉल्वेंट का जो जोड़ता है उसको हम बोलते हैं कपलिंग एजेंट. फॉर एग्जांपल एक हर्बिसाइड हम डाल रहे हैं, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो रहा है, अगर उस हर्बिसाइड को एक हम चीज देंगे, वो कपलिंग एजेंट देंगे, तो वो जो चीज हम डालें वो इजीली वाटर सॉल्युबल है. फॉर एग्जांपल यू कैन सी 2,4-D is insoluble in water, but it can be dissolved in polyethylene glycol to make it water soluble. ये इंपॉर्टेंट, ठीक है. कपलिंग एजेंट पूछा जाता है, 2,4-D के साथ हम क्या मिला है, वाटर सॉल्युबल पॉलीथीन ग्लाइकोल के साथ. ओके, कॉमन सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल बेंजीन, एसीटोन, पेट्रोलियम ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है, देन आता है हमारा ह्यूमिकैंट्स. ओके, ह्यूमिकैंट्स प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग ऑफ हर्बिसाइड. एक हर्बिसाइड हम डालें, क्या होता है, अगर स्कॉर्चिंग हीट है वो ड्राई हो जाएगा एंड इट विल बी इवेपोरेट. सो उसको आर्द्र बना के रखने के लिए हमको क्या करना है, ह्यूमिकैंट्स डालते हैं. एग्जांपल ग्लिसरॉल. ठीक है, अगर ड्राई हो जाएगा तो क्या होगा, पेनिट्रेशन कम होगा, इसलिए हमको उसको वेटी रखना है. ठीक है, हमको अपॉर्चुनिटी देना है हर्बिसाइड पेनिट्रेशन के लिए, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा देना है. देन आता है हमारे डिपॉजिट बिल्डर्स, स्टिकर्स एंड फिल्मिंग एजेंट. फार्मर्स ना इस स्टिकर के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है. ओके, आई यूज्ड टू टॉक रेगुलर विद द फार्मर. ओके, सो दे यूज्ड टू टेल दैट सर सिर्फ और सिर्फ समर सीजन को छोड़ के बारिश से लेकर विंटर तक, ओके, वो स्टिकर यूज करते हैं. ओके, क्योंकि देखो अगर हम अभी बारिश हो गया, ओके, अगर हम पेस्टिसाइड डालें, बारिश हो गया, क्या होगा, वो लॉस हो जाएगा, ऐसा नो. सो अगर एक स्टिकर डाल देंगे तो वो कह रहा है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा प्रॉपर्ली पेनिट्रेट होने के लिए. ठीक है, सो केमिकल्स एडेड टू हर्बिसाइड considered to hold the toxicant in intimate contact with the plant surface. They also reduce washing off of the toxicant from the treated foliage by the rain. वो क्या करेगा, वो टॉक्सिकेंट को पकड़ कर रखेगा, इंटीमेट होके रखेगा, ताकि वो प्लांट सरफेस में आसानी से घुस सके. ओके, और वो वॉश आउट ना हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल सेवरल पेट्रोलियम ऑयल्स, ड्यूपॉन्ट स्प्रेडर्स एंड स्टिकर्स, कीटोविट, इसको आप याद रखना, सीटोविट. ओके, बहुत सारे स्टिकर्स आते हैं, अभी तो लोग बहुत सारे लोकल कंपनीज भी स्टिकर्स देते हैं, फ्री में देते हैं, ऐसे मतलब 10 to 15 रुपीज में दे देते हैं. ठीक है, कोई मतलब ऑफर में देते हैं. ओके, एक आप इंसेक्टिसाइड खरीदे, एक स्टिकर फ्री देते हैं. ओके, ऐसे भी दे देते हैं. देन कंपैटिबिलिटी एजेंट यूज्ड टू इंटीमेटली मिक्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड इन स्प्रे लिक्विड्स. फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स, अगर एक pesticide and fertilizer if you want to spray all together, then you need a compatibility agent. Okay, बहुत सारे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कंपैटिबल नहीं है, तो हमको क्या करना है, एक कंपैटिबल एजेंट डालना है ताकि वो दोनों बहुत ही ज्यादा कंफर्ट फील करें. फॉर एग्जांपल, ओके, two enemies are there. Okay, they are not they can't stay together, they can't talk. So क्या कहते हैं, एक मिडिल मैन आता है उनको जोड़ने के लिए. ठीक है, तो उसको आप बोलते हैं कंपैटिबिलिटी एजेंट्स. ओके, देन आता है हमारा एक्टिवेटर्स. ओके, फॉर एग्जांपल सिनर्जिस्ट. ओके, एक्टिवेटर मतलब सिनर्जिस्ट मतलब किसी का अगर कोऑपरेशन होना तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हो. फॉर एग्जांपल बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज ए मैन. ओके, सो ये जो हमारा सुधा मूर्ति ने बना था, तो आई जस्ट रिपीटेड हर डायलॉग. सो सुधा मूर्ति ने क्या बोला था, हर एक सक्सेसफुल वुमन के पास एक मैन का हाथ होता है. वैसे ही अगर किसी हर्बिसाइड इफेक्ट का अगर डिजायरेबल हमको चाहिए तो कुछ चीज होना चाहिए जो एक्टिवेट करेगा उसको. अगर वो एक्टिवेट नहीं, वो लेजी है, तो एक्टिवेट करेगा उसको. कि उसको हम बोलते हैं सिनर्जिस्ट और एक्टिवेटर्स. सो दीज आर द केमिकल्स हैविंग कोऑपरेटिव एक्शन विद द हर्बिसाइड. दे हैव कोऑपरेटिव एक्शन, वो एंटागनिस्ट नहीं है, वो कोऑपरेटिव करेंगे. द रिजल्टेंट फाइटोटॉक्सिसिटी इज मोर देन द इफेक्ट ऑफ टू वर्किंग इंडिपेंडेंटली.
अगर दो अलग डालेंगे तो क्या होगा, वो उतना इफेक्टिव नहीं करेंगे। अगर वो साथ में डाल देंगे ना, वो जो इफेक्ट आएगा, वो जो पावर मिलेगा, वो बहुत ही ज्यादा होगा। ओके, बहुत ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग वन एसे, ओके, तो वो बहुत दिन लगेगा अगर आई फेल राइट। सो अगर मुझे एक मेरा ही सिमिलर माइंड की तरह अगर कुछ कोई मिल जाए, तो क्या होगा, वो डिस्कस करके इतना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल योर एग्जाम प्रिपरेशन, अगर आपको कोई एक दोस्त मिल जाए जिसके पास बहुत ही अच्छा नॉलेज है, तो आपका एग्जाम प्रिपरेशन बहुत ही बूस्ट होगा। ओके, क्योंकि आप दोनों सिमिलर माइंड के होंगे, ताकि जब डिस्कस करेंगे ना, बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेगा। तो उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटर्स और सिनर्जिस्ट। अंडरस्टूड गाइस? सो एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे पैराफिनिक ऑयल से अमोनियम थायोसिनेट है, यूरिया है, अमोनियम क्लोराइड है टू एनहांस द 2,4-D फाइटोटॉक्सिसिटी। अगर 2,4-D एंड अमोनियम क्लोराइड हम दोनों मिला के डालेंगे तो 2,4-D का जो इफेक्ट है बहुत ही ज्यादा होगा, वो मतलब है हमारा। देन आता है हमारा ड्रिफ्ट कंट्रोल एजेंट। जब हम कोई हर्बिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, अगर वहां पे क्या होगा, जो हवा है वो उसका जो बहता हुआ स्पीड है, वो अगर बहुत ही ज्यादा है तो क्या होगा, वो ड्रिफ्ट होगा। ओके, वन प्लेस टू अदर प्लेस जाएगा और अदर क्रॉप को वो इफेक्ट करेगा। अगर उसको रोकना है तो हमको क्या करना है, एक ड्रिफ्टिंग एजेंट डालना है, ताकि वो जो मॉलिक्यूल का जो वेट है उसको बढ़ा देगा। मतलब वो जो पतला है वो उसको मोटा करता है, तो क्या वो घूम नहीं जाए, वो नहीं जा पाएगा, ऐसा ना। तो उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट कंट्रोल एजेंट्स। सो हर्बिसाइड स्प्रे ड्रिफ्ट्स में पोज सीरियस हजार्ड्स टू नॉन टारगेट प्लांट्स। फॉर एग्जांपल हमको पता है 2,4-D ऑन कॉटन। ओके, 2,4-D ऑन कॉटन, जो फिंगर डिजीज होता है, फिंगर लिप डिजीज इन कॉटन इज कॉज्ड ड्यू टू 2,4-D। ओके, फिंगर लिप डिजीज इन कॉटन इज कॉज्ड टू 2,4-D। क्या होगा, जब 2,4-D डाल देंगे तो फिर छोटा 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 ऐसा हो जाएगा कॉटन में, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज टू स्प्रे हर्बिसाइड लिक्विड इन लार्ज ड्रॉपलेट्स, ठीक है। जब हम ये डालेंगे तो क्या होगा, जो ड्रॉपलेट साइज वो लार्ज हो जाएगा, ताकि वो ड्रिप ना हो पाए वन प्लेस टू द अदर प्लेस। तो थिकनिंग एजेंट्स आर फॉर एग्जांपल सोडियम अल्जीनेट, ये आप याद रखिएगा। ओके, सोडियम अल्जीनेट एज ए ड्रिप कंट्रोल एजेंट हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा हार्ट ऑफ वीड मैनेजमेंट। तो हार्ट ऑफ वीड मैनेजमेंट दैट इज मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड्स। ओके, तो जब हम एक हर्बिसाइड डालते हैं तो क्या होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड। जब हम पूछते हैं व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट हैज अकर्ड, आई हैव स्प्रेड फ्रॉम हियर, देन व्हाई इट हैपेंड हियर। ओके, सो हम जिस पॉइंट से डालते हैं हर्बिसाइड पर, मतलब प्लांट का जो इफेक्ट होता है, जो हर्बिसाइड का इफेक्ट वो कहीं और होता है। तो वो जो चेन ऑफ सीक्वेंस, जो चेन ऑफ इवेंट्स होता है, उसका हम बोलते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड। एक हर्बिसाइड डालने के बाद से लेकर जो डिजायरेबल इफेक्ट दिखाता है, उसको हम बोलते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड्स। ओके, यू कैन सी the term mode of action refers to the sequence of events from absorption into plants to plant death. ओके, उसको हम बोलते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड। ये कुछ भी हो सकते हैं, बायोकेमिकल चेंज, एनाटॉमिकल चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंज, एनीथिंग इट में हैपन, बट आपको रिजल्ट चाहिए। फार्मर को क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, उसको देखना चाहिए हम ये अप्लाई किए तो रिजल्ट आना चाहिए। ग्लाइफोसेट अप्लाई किए, मरना चाहिए घास। ओके, वीड कंट्रोल होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड्स। ओके, तो वो ना वो कई तरह के होते हैं। ओके, वो मतलब किसी को भी इनहिबिट कर सकते हैं, कोई फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, कोई सेल डिवीजन को इनहिबिट कर सकते हैं, कोई लिपिड को इनहिबिट कर सकते हैं। ओके, वो हम डिस्कस करेंगे। ये सारा का सारा जो थ्योरी ना वो आप पढ़ लेना। ओके, हम आएंगे एग्जाम में जो आता है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो सारे चीजों का, जो सारा चीजें वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्या आता है, एसिटिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। एसिटिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, आप बताइए ये कहाँ पे यूज होता है, ये कहाँ पे यूज होता है, लिपिड बायोसिंथेसिस में यूज होता है। लिपिड बायोसिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है। तो लिपिड बायोसिंथेसिस एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। आप अगर पता नहीं तो आप जाइए देखिए। ओके, वहां पे क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वर्क होता है। देखिए रेस्पिरेशन में क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम वो हो जाता है
ऐसा नो एसिटिल कोएंजाइम होता है। उसके बाद it enters to lipid biosynthesis. It can go to Krebs cycle, it can go to the lipid biosynthesis. तो एसिटिल कोएंजाइम A is very important for the lipid biosynthesis. तो इसको अगर इनहिबिट कर दे तो लिपिड फॉर्मेशन नहीं होगा, सो दैट द सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसका लिपिड एक होता है PLLP होता है, प्रोटीन एक लेयर, देन उसके बाद लिपिड दो लेयर, एक प्रोटीन लेयर के साथ होता है। तो क्या होगा, वो जो उसका जो फाउंडेशन है वो ब्रेक हो जाएगा, ताकि वो जो सेल मेम्ब्रेन से क्या होगा, वो ऊज आउट कर जाएगा और सेल डेथ हो जाएगा। तो एग्जांपल क्या है, क्विजल फॉप पी टाइप, ओके, या फॉप एंड प्रोप टाइप ऑफ जो हर्बिसाइड होते हैं वो एसिटिल कोएंजाइम ए, उसको बोलते हैं ACCase इनहिबिटर भी उसको हम बोलते हैं। क्विजल फॉप का ट्रेड नेम क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द ट्रेड नेम ऑफ क्विजल फॉप? अब अगर आपको पता है तो मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए यहाँ पे। कोई बताएगा क्विजल फॉप का क्या ट्रेड नेम है? पता नहीं? उसका ट्रेड नेम है टारगा सुपर। क्या है? टारगा सुपर, ठीक है। शॉर्टकट क्या है? क्विटा, क्विटा, ओके। क्विट भी आप कह सकते हैं, क्विट, ओके, क्विटा। सो उसका नाम है टारगा सुपर। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ओके। आपको मतलब केमिकल नेम के वजह से कॉमन मतलब ट्रेड नेम भी पूछा जा सकता है, इसके लिए आपको याद रखना है। देन आता है हमारा एसिटोलैक्टेट और एसिडोहाइड्रोक्सिल एसिड सिंथेस और ब्रांच्ड अमीनो एसिड चेन इनहिबिटर्स। तो एसिटोलैक्टेट एंड एसिडोहाइड्रोक्सिल एसिड सिंथेस क्या करते हैं, ये आपको याद रखना है। ये क्या करते हैं? अमीनो एसिड सिंथेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन एंड ये करते हैं वेलाइन, ठीक है। अगर ये दोनों को अगर हम इनहिबिट कर देंगे, देन आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन एंड वेलाइन मतलब बायोसिंथेसिस नहीं बंद होना, सॉरी होना बंद हो जाएगा। तो क्या होगा? तो अमीनो एसिड्स विल बी reduced so that ultimately it will be show some effect. So ये कौन कौन करता है? सल्फोनिल यूरिया ग्रुप जो सल्फोसल्फ्यूरिन होता है, इमाजाथापिर करता है जिसका ट्रेड नेम क्या है? परस्यूट है, परस्यूट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देन आता है हमारा रेस्पिरेशन इनहिबिटर। रेस्पिरेशन इनहिबिटर, आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस पता है, उसको इनहिबिट करता है क्या? DNOC, दिनोसेफ, आयोक्सिनिल, ब्रोमोजिनिल टाइप ऑफ हर्बिसाइड्स। देन आता है हमारा PS2 इनहिबिटर, फोटोसिंथेसिस 2, ओके। फोटोसिंथेसिस दो तरह का था, वन इज फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, ओके। तो फोटोसिस्टम 2 को इनहिबिट कौन करता है? ट्राइजन ग्रुप, यूरिया ग्रुप, प्रोपेनल ग्रुप एंड यूरासिल, ओके। सो ट्राइजन में कौन आता है? एट्राजिन मेनली, ऐसा ना। तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है ऑलरेडी, ओके, यू कैन सी इन माय चैनल एक्चुअली। बट यहाँ पे हमको यहाँ पे आपको शॉर्टकट बता देते हैं क्या होता क्या है। तो देखिए फोटो सिस्टम टू से जो P680 होता है सेंटर, ओके, और एक हमारा तो लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर होता है। तो P680 when it will absorb the red light, so what happen? The electron get excited and it will go through the chain of receivers, okay. तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके वो जाता है, ओके, प्लास्टोक्विनोन A जहाँ पे D2 प्रोटीन लगा रहता है, उसके बाद प्लास्टोक्विनोन B जहाँ पे D1 प्रोटीन रहता है। प्लास्टोक्विनोन B जो होता है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, ओके, वन इज सीरीन 264 रहता है और एक हिस्टिडीन 215 के रहता है। After that, when plastoquinone B will receive 2 electrons, so what will happen? They will undergo a reduction process. So these 2 hydrogen bond will be break and they will undergo reduction, so that one more unreduced plastoquinone B will be come and replace the process and the cycle will be continue. But when we will apply the atrazine, for example, I applied atrazine, so what will happen? They will attack here, okay, means atrazine will act as a non-reducible plastoquinone B. Non-reducible means we cannot reduce, so no further reduction will be occur in atrazine. So atrazine क्या करेगा? उसका दो हाइड्रोजन बॉन्ड लेके आएगा, कौन कौन?
serine 264 and phenylalanine 265. ये दो के साथ मतलब हिस्टिडीन 215 will be replaced with the phenylalanine 265 जो कि नॉन रेड्यूसिबल है। तो क्या होगा, सारा का सारा एनर्जी यहाँ पे मतलब ऑल टुगेदर एक्यूरेट रहेगा। जो सिंगलेट ऑक्सीजन रहेगा, जो सिंगलेट क्लोरोफिल रहेगा, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके वो क्या करेगा, सिंगलेट ऑक्सीजन बनाएगा। सिंगलेट विल बी ट्रिपलेट एंड दे विल बी मोर टॉक्सिक। So that what will happen, they will start lipid peroxidation like of linolenic and linoleic acid, so that वो जो सेल का जो लिपिड लेयर होता है ना वो टूट जाएगा और वो जो सोइल कंटेंट क्या होगा वो बाहर आ जाएगा ताकि वो डेथ हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है फोटोसिस्टम 2 में, ठीक है। तो फोटोसिस्टम 1 में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन आता है फोटोसिस्टम 2 से 1 तक जो कि NADPH जो क्रिएट करता है, तो NADPH जाके पहले मतलब ATP एंड NADPH क्या होता है, CO2 को लगते हैं वो कंटिन्यू करते हैं मतलब ग्लूकोज वो बनाते हैं। तो NADPH जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है उसको क्या करेंगे, ये पैराक्वार्ट एंड डाइक्वार्ट क्या करेंगे, डाइवर्ट कर देंगे उस इलेक्ट्रॉन को, हमने भेज नहीं देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, फ्री रेडिकल्स विल बी क्रिएट इन द सेल, free radicals will be created in the chloroplast. Okay, so what will happen, that free radicals will further improve to hydrogen peroxide and hydroxy, means free hydroxy radical will be formed and they will start lipid peroxidation, so that the cell membrane whatever the construction is there that will be break down and cell will be ooze out. Okay, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको जो SOD होता है और हमारा जो पेरोक्सीडेस होते हैं वो हमको अप्लाई करना पड़ता है। तो ये अप्लाई कैसे करेंगे, तो SOD कौन फॉर्म करता है, जिंक करता है, आयरन करता है, कॉपर करता है, मैंगनीज करता है। तो इसलिए हम पैराक्वार्ट को इनएक्टिव करने के लिए फेरिक क्लोराइड डालते हैं, ऐसा ना, फेरिक क्लोराइड डालते हैं। आयरन जो है वो क्या करेगा SOD क्रिएट करेगा, सुपर ऑक्सीडाइज्ड डिस्मुटेज, सुपर ऑक्सीडाइज्ड डिस्मुटेज, इसको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स, ठीक है। तो दे विल इनएक्टिवेट द फ्री रेडिकल्स व्हाटएवर द क्रिएटेड, ठीक है, ताकि वो टॉक्सिक इफेक्ट ना दिखाए। समझ में आप सबको फोटोसिस्टम 2 and 1? ओके, यस। देन आता है हमारा PPO इनहिबिटर, ओके, प्रोटोप्रोपाइरोनोजेन इनहिबिटर। ओके, ये हमारा जो होता है ना, प्रोटोप्रोपाइरोनोजेन कहाँ पे दिखता है बताएगा, क्लोरोफिल जो स्ट्रक्चर होता है ना वहां पे दिखता है, ठीक है। तो उसको इनएक्टिवेट क्या कौन करता है, ऑक्सीफ्लोरोपेन एंड नाइट्रोपेन। आपको याद रखना ऑक्सीफ्लोरो का ट्रेड नेम क्या है, गोल, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, आपको याद रखना है। ऑक्सीफ्लोरोपेन ट्रेड नेम गोल, शॉर्टकट है ऑक्सीगो। ओके, ऑक्सीगो, ऑक्सीगो आपको याद रखना है, मतलब बार बार इसी बोल रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देन आता है हमारा पिगमेंट इनहिबिटर। हमारा कितना पिगमेंट होता है, एक होता है क्लोरोफिल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर इसको इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा, अल्बिनो हो जाएगा, मतलब द प्लांट विल बी ब्लीच्ड आउट द क्लोरोफिल, सो इट विल लुक लाइक व्हाइट कलर। ओके, वी कॉल इट इज अल्बिनो। ओके, ये कौन करता है, अमिट्रोल करता है। कौन करता है, अमिट्रोल, और बिसाइड एग्जांपल है। देन आता है हमारा EPSP, ओके, इनोइल फॉस्फेट सिकिमेट पाथवे, 5 इनोइल फॉस्फेट सिकिमेट पाथवे, ये किसके लिए होता है, ये एक अमीनो एसिड सिंथेसिस पाथवे, ठीक है। तो इसके द्वारा हमारा जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है वो सिंथेसिस होता है EPSP पाथवे से, सिकिमेट पाथवे से। तो फॉर एग्जांपल टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन है हमारा, फिनाइलएलानाइन, वो सारे सीक्रेट होते हैं। अगर EPSP पाथवे अगर बंद हो जाएगा, वो हमारे जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है वो सीक्रेट होना बंद हो जाएंगे, और वो कौन करता है, ग्लाइकोसाइड। ये बहुत बार पूछा था, ओके, मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। ओके, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। EPSP पाथवे, ग्लाइफोसेट। ओके, यहाँ पे देखिए एनोइल फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट से क्या है, ग्लाइफोसेट, याद रह जाएगा, ठीक है। देन आता है हमारा ग्लूटामिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर। सो ग्लूटामिक एसिड करता क्या है, कौन बताएगा, ग्लूटामिक एसिड कहाँ पे यूज होता है प्लांट में, एनीवन, नो आइडिया? and nitrogen cycle. Yeah, Acylation nitrogen mobilizes in the
प्लांट, ओके, वहां पे ये यूज होता है। तो ग्लूटामिक एसिड एमाइन के साथ मिलके ग्लूटामाइन करता है, उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है। तो जो ग्लूटामिक एसिड है NH3 के साथ मिलके वो ग्लूटामिक क्रिएट करता है। अगर हम ग्लूटामिक एसिड सिंथेसिस को क्या करेंगे, बंद कर दें, क्या होगा, NH3 will be accumulate in the plant. So ammonia क्या है, टॉक्सिक है, and it will show the toxic effect so that the plant will be die. So example है ग्लूकोसिनेट AM, ओके, ये इजी है। यहाँ पे क्या है, ग्लूटामिक एसिड से क्या ग्लूटामाइन होगा, एमोनियम होगा रिलेटेड। सो ग्लूकोसिनेट AM, ये याद रह जाएगा आपको, एमोनियम। तो ये क्या है, एक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, ये भी आपको याद रखना है, एक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, ठीक है। देना था हमारा सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर। हमने बताया सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, PLLP एक प्रोटीन लेयर होता है, मतलब द लिपिड लेयर्स आर सैंडविच इन बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स, ओके। उसको कौन मतलब डिसरप्ट करता है, पैराक्वाड एंड डाइक्वाड, ये भी बहुत बार आया है एग्जाम में। देना था हमारा माइक्रोट्यूबुल असेंबलिंग इनहिबिशन। ये कहाँ पे आता है सेल में, ये कहाँ पे आता है ना, सेल डिवीजन में ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। तो जो हमारा माइक्रोट्यूबुल होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना रहता है, ट्यूबुलिन, ऐसा ना। तो इसका ना दो एंड होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड जिसको हम A बोलते हैं, और एक होता है नेगेटिव एंड जिसको हम B बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम इस तरह का इनहिबिटर हर्बिसाइड डालेंगे तो क्या करेंगे, वो ये जो पॉजिटिव एंड को है ना वो बंद कर देंगे, इसका हम वो आके यहाँ का बंद कर देंगे। तो क्या होगा, ओनली नेगेटिव साइड विल बी ग्रो, जो कि एक लॉस्ट है, ट्यूबुलिन लॉस्ट इसको बोलते हैं, और ट्यूबुलिन ग्रो इसको बोलते हैं। तो ट्यूबुलिन विल बी क्विकली, इट विल बी लॉस्ट by the time. So what will happen, the whole microtubule will be end up, so that there will be, what will happen, all the chromatids will be, they will be all together in the cell only. So all of the cell wall thickness will be occur, the abnormal growth will be observed in the root surface or plant surface, okay, mainly in root surface it is observed, okay। एक मतलब एक बड़ा बड़ा शेप जैसे जैसे दिखाई देगा, ओके, इसकी वजह से। तो एग्जांपल क्या है, फ्लूक्लोरिन, पेंडिमिथालिन, एसुलम एंड बारबन टाइप ऑफ हर्बिसाइड इज यूज्ड फॉर माइक्रोट्यूबुल असेंबलिंग इनहिबिशन। समझ में आप सबको, एवरीवन? यस सर। ओके, देन आता है हमारा DNA एंड RNA इनहिबिटर्स, जो कि सेल डिवीजन में होता है, हमारा जो सिंथेसिस फेज है उसको ये डिवाइड मतलब इनएक्टिव कर देते हैं। 2,4-D डालापोन, नाइट्रोफेन, एक्सोप्लेवन टाइप ऑफ हर्बिसाइड। देन आता है हमारा माइटोटिक डिवीजन इनहिबिटर, कार्बामेटिक ग्रुप इन EPT3, सेल डिवीजन इनहिबिटर, alachlor, butachlor, pretalachlor, cell elongation inhibitor, auxin type of herbicide like 2,4-D, 2,4,5-T, MCPA, MCPB, 2,4-DB, इस तरह का जो सेल इलोंगेशन होता है ऊपर क्या होता है, ऑक्सिन होता है, उसको ये क्या करेंगे, इनएक्टिव करते हैं। तो क्या होगा, एपिनेस्टिक मूवमेंट दिखाएगा, क्या दिखाएगा, एपिनेस्टिक मूवमेंट दिखाएगा, मतलब इट कैन बी ट्विस्टेड, टर्न, इट कैन ऑकर लाइक दैट, ठीक है। आता है हमारा बायोकेमिकल सिलेक्टिविटी, ओके। हमारा जो हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी है वो बहुत तरह का होता है, डेप्थ सिलेक्टिविटी का, केमिकल सिलेक्टिविटी, बायोकेमिकल सिलेक्टिविटी, एनी पाथवे सिलेक्टिविटी, मतलब केमिकल जो पाथवे है वो सिलेक्टिविटी होता है, ओके। तो सिलेक्टिविटी होता क्या है, देखिए यहाँ पे एक वीड है, यहाँ पे हमारा क्रॉप है, ठीक है। तो जब हम हर्बिसाइड स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, वीड मर जाएगा, पर हमारा जो क्रॉप है वो नहीं मरेगा। वो क्यों नहीं मरेगा, ये है बायोकेमिकल सिलेक्टिविटी, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरे जो सिलेक्टिविटी है वो डेप्थ बेसिस हो गया, या वो जनरल सिलेक्टिविटी है, पर बायोकेमिकल सिलेक्टिविटी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम इसको फोकस करके स्लाइड लेके आए हैं, ओके। इस टेबल में सारा का सारा इंपॉर्टेंट दिया गया है, ठीक है। ये जो 4-5 दिख रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2,4-D एंड 2,4-DB, ये एक दो हर्बिसाइड है, ठीक है। सो बात क्या है, 2,4-DB is more selectivity to pulses, but 2,4-D is not, okay। तो क्या होगा, क्या देखिए यहाँ पे पल्स लिखा है, ओके, यहाँ पे पल्स क्रॉप लिखा है, यहाँ पे ब्रॉड लीफ वीड है, यहाँ पे ब्रॉड लीफ वीड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2,4-DB डाला, 2,4-DB डाला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन होता है,
कौन सा ऑक्सीडेशन? बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जो कि पल्सेस में नहीं होता है, विड में होता है। ठीक है, सो जब हम 2,4-DB डालेंगे तो 2,4-DB विल बी कन्वर्ट टू 2,4-D by the process of beta oxidation, so that 2,4-D kills broad-leaf weeds. Yes or no? 2,4-D kills only broad-leaved weeds. Yes or no? Everyone? Hello? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay, so 2,4-D only controls broad-leaf weeds. So when 2,4-D will be applied, so that will be converted to 2,4-D in weed plants, in broad-leaved weed plants, by the process of beta oxidation. ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन वजह 2,4-D में कन्वर्ट हो जाएगा और वो वीड मर जाएगा। बट दिस बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज एब्सेंट इन पल्स क्रॉप। रिमेंबर, बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज एब्सेंट इन पल्स क्रॉप, दैट्स व्हाई 2,4-DB selectivity to pulses, not the weed. Okay, so that's the process. One more is atrazine simazine, जो कि मेज एंड sorghum में, मेज शुगर केन sorghum में देखा जाता है। वहां पे क्या पाया जाता है? हमारा बेंजाक्जिनोन पाया जाता है, बेंजाक्जिनोन पाया जाता है मेज में, और sorghum में क्या पाया जाता है? ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज वो पाया जाता है। वो क्या करते हैं? इनएक्टिवेट कर देते हैं एट्राजिन को। ओके, दे विल बी इनएक्टिवेट द एट्राजिन। ओके, एक क्लोरीन आयन प्रोसेस होता है, वो आप पढ़ लेना थोड़ा। ओके, क्लोरीन आयन प्रोसेस होता है, ये थोड़ा पढ़ लेना आप। वो क्या कहते हैं? डी अल्काइलेशन कर देते हैं, लीडिंग टू CO2, H2 and N। ठीक है, देन डायरोन एंड अदर, डायरोन सिलेक्टिविटी कौन है? कॉटन। ओके, तो कॉटन में क्या होता है? डीमिथिलेशन प्रोसेस होता है, जो कि ग्रासेस में नहीं होता है, अदर ग्रासेस में नहीं होता है। ओके, सो अगर डायरोन एंड कॉटन का बात आया तो आपको याद रखना है डीमिथिलेशन। ओके, डीमिथिलेशन, और यहाँ पे क्या पाया जाता है? ग्लाइसिजिनस एजेंट पाया, ग्लाइसिजिनस ग्लैंड पाया जाता है, ग्लैंड पाया जाता है, जो कि डीमिथिलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, देन प्रोपानोल इज सिलेक्टिविटी टू राइस, हाउ? एसिल एरिल एमिडेज जो होता है, ओके, जो कि हाइड्रोलाइज करता है। ठीक है, सो राइस में अगर हम अप्लाई करेंगे प्रोपानोल तो क्या करेगा? वो एसिल एरिल एमिडेज की वजह से वो क्विकली हाइड्रोलाइज कर लेगा प्रोपानोल को, पर ग्रासेस जो है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास एसिल एरिल एमिडेज नहीं है। अगर एसिल एरिल एमिडेज ग्रासेस में क्रिएट हो जाए तो इट विल बी सो रेजिस्टेंट टू दैट टाइप ऑफ हर्बिसाइड। ठीक है, अभी तो प्रोपेनोल बैन है। ओके, कल हमने पूछा था ग्रुप में कि कौन सा हर्बिसाइड को हम राइस हर्बिसाइड बोलते हैं? पायरिडोसल्फोरन पीथल, जिसका ट्रेड नेम है साथी नाम से वो मार्केट में मिलता है। ठीक है, और एक तो हमारा ईपीटीसी, जो कि पोटैटो में सिलेक्टेड पाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन आता है हमारा हर्बिसाइड इंटरेक्शन। ठीक है, तो हर्बिसाइड अगर दूसरी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड या फर्टिलाइजर के साथ अगर डालते हैं तो उसका जो इफेक्ट दिखाते हैं, एनहेंस इफेक्ट या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट या एडिटिव या एंटागोनिस्टिक जो दिखता है, उसको हम बोलते हैं हर्बिसाइड इंटरेक्शन। ठीक है, तो एडिटिव इफेक्ट क्या होगा? सो द टोटल इफेक्ट विल बी, ऑब्वियसली इट विल बी डिजायरेबल। सिनर्जिस्टिक हमने बोला कि कैसे वो इफेक्ट बहुत ही ज्यादा हो जाता है। एंटागोनिस्टिक मतलब इफेक्ट कम कर देगा। ओके, द टोटल इफेक्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द इफेक्ट ऑफ द मोस्ट एक्टिव कंपाउंड अप्लाइड अलोन। ठीक है, वो इफेक्ट कम कर देगा। इंडिपेंडेंट इफेक्ट, द टोटल इफेक्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द इफेक्ट ऑफ द मोस्ट एक्टिव कंपोनेंट अप्लाइड अलोन। ओके, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र से वो इफेक्ट दिखाएंगे। एनएस इफेक्ट हमने बोला, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, अमोनियम सल्फेट एंड ग्लाइफोसेट। ओके, जब ग्लाइफोसेट अमोनियम सल्फेट के साथ डालते हैं, उसका जो इफेक्ट आता है बहुत ही डिजर्व, ये एग्जाम में आता है, ये वाला एग्जाम में आता है, इसको आप याद रखिए। ग्लाइफोसेट इज मिक्स्ड विद व्हिच फर्टिलाइजर टू एनहेंस द इफेक्ट ऑफ ग्लाइफोसेट। या ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया है हर्बिसाइड मॉइस्चर इंटरेक्शन कहते हैं, हर्बिसाइड इंसेक्टिसाइड कैसे होता है। ओके, ये आप थोड़ा पढ़ लेना एक बार। हर्बिसाइड पैथोजन या फंजीसाइड इंटरेक्शन कैसे होता है। हर्बिसाइड फर्टिलाइजर हमने बोला ग्लाइफोसेट के साथ अमोनियम सल्फेट बहुत ही कंपैटिबल है। हर्बिसाइड माइक्रोबियल इंटरेक्शन है। ठीक है, देन आता है हमारा टाइप ऑफ स्प्रेयर। ठीक है,
Mostly the farmers use the knapsack sprayer, and now it is battery sprayer. Battery sprayer या पावर ऑपरेटेड स्प्रे, पावर स्प्रे भी जो टोटल एक 10 to 12 लीटर का कैपेसिटी होता है पावर स्प्रे में। ओके, एक मतलब एक मोटर लगा रहता है, ऐसे करंट ऑन करता मोटर होता है, और बहुत ही ज्यादा मतलब वहां पे जो स्प्रे फ्लूइड होता है वो बहुत ज्यादा खर्च होता है। ठीक है, तो इसलिए बैटरी ऑपरेटेड स्प्रे का जो अभी डबल बैटरी आ रहे हैं, ओके, डबल बैटरी ऑपरेटेड नैपसैक स्प्रे आ रहे हैं, वो वाला बहुत ही यूज होता है अभी। ठीक है, तो टाइप ऑफ स्प्रेयर, स्प्रेयर क्या है, होता क्या स्प्रेयर, देखिए हम तो मतलब हर्बिसाइड को पानी में मिला के ऐसे ही नहीं डाल सकते मग में, यस और नो, सो वी हैव टू स्प्रे विद इन द डोज एंड आल्सो विद ऑप्टिमम क्वांटिटी। तो स्प्रेयर क्या करता है, उस फ्लूइड लिक्विड को वो ब्रेक कर देता है। ओके, वन पार्ट विल बी break to the in many parts, so it will be atomizing the thing. Is it atomizes the thing, atomizing the things. So the sprayer is one which atomizes the spray fluid, which may be a suspension, an emulsion or a solution. आप उसको कुछ भी डाल दीजिए, उसको क्या करते हैं, एटोमाइज करते हैं into small droplets and eject it with little force for distributing properly. और वो इतनी आसानी से डालता है कि वो इजीली प्लांट में पेनिट्रेट हो सके, उसको हम बोलते हैं स्प्रेयर्स। ओके, regulates the amount of pesticide to avoid excessive application that might prove wasteful or harmful. Okay, अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो क्या होगा, जो पेस्टिसाइड और जो का इफेक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा हो सकता है, वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, उसको कम करने के लिए हमको स्प्रेयर यूज करना पड़ता है। ठीक है, the mechanical appliances that are used for distributing the dust formulation of pesticide are called as dusters. Dusters भी होता है जो कि जो हमारे जो डस्ट फॉर्मुलेशन होता है उसको स्प्रे करने के लिए हम डस्टर यूज करते हैं। ठीक है, देन टाइप ऑफ स्प्रेयर है, यहाँ पे हाइड्रोलिक स्प्रेयर है, गैसियस स्प्रेयर है, सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेयर है, काइनेटिक एनर्जी स्प्रेयर है। हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब कुछ द एनर्जी विल कम फ्रॉम द हाइड्रोलिक प्रोसेस। गैसियस मतलब एक वैक्यूम होता है, वहां से वो जो एनर्जी होता है जो स्प्रे करने का एनर्जी वो वैक्यूम से आ रहा है। सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से आ रहा है, जो सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी पे काइनेटिक एनर्जी, हम अगर कुछ एनर्जी दे रहे हैं आउट सोर्स या इन सोर्स, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी स्प्रेयर। ये आप पढ़ लेना, थोड़ा थ्योरी है इसके ऊपर। टाइप ऑफ डस्ट स्प्रेयर, पैकेज डस्टर, फिंगर डस्टर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं डायरेक्ट स्प्रे इक्विपमेंट में। ठीक है, एक होता है हैंड स्प्रेयर। ठीक है, आप देखे होंगे जो एक होता है ना, एक बोतल होता है, एक स्प्रेयर लगा रहता है। ओके, आप वो जो हम ऑर्चर्ड में यूज करते हैं, गार्डन में यूज करते हैं, ठीक है, एक स्प्रे करते हैं, उसको हम बोलते हैं हैंड स्प्रेयर। वो कितना है, 500 to 1 लीटर का, 500 ml to 1 लीटर कैपेसिटी का होता है। ओके, so this is generally used for spraying small areas like kitchen garden, experimental laboratory plots. Okay, so it is a basically hydraulic energy spray. वो एनर्जी कहाँ से है, वो हाइड्रोलिक एनर्जी से आ रहे, मतलब वाटर से वो आ रहे एनर्जी। So it is a hydraulic pump inside the container with cylinder, plunger and a plunger rod. बहुत ही आसान होता है, ये वाला देख लीजिए, आपको ये वाला हैंड स्प्रेयर है। ओके, इसको अभी मॉडिफाई करके बहुत अच्छे स्प्रेयर आ चुके हैं। वो सैलून में भी एक बार यूज करते हैं ना, वो स्प्रेयर यूज करते हैं सैलून में। देन आता है हमारा नैपसैक स्प्रेयर, जो कि बहुत ही यूज होता है। ओके, एनीवन, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव सीन द नैपसैक स्प्रेयर, यस और नो? सभी ने देखा है ना नैपसैक स्प्रेयर को, या कोई नहीं देखा है? बोल दीजिए, अभी कन्फेस कर लीजिए। ठीक है, तो सभी ने देखा होगा। ओके, वहां पे क्या होता है, एक रोड होता है, वो हम एजिटेट करना पड़ता है, अगर कोई हर्बिसाइड सॉल्यूशन मतलब वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल नहीं है तो उसको हम एजिटेट करना पड़ता है। ठीक है, तो एनी स्प्रे व्हिच इज कैरिड ऑन द बैक, जो कि पीछे हम लगा कर उसको हम क्या बोलते हैं, नैपसैक स्प्रे, उसको हम बोलते हैं। द कॉमनली यूज मैनुअली ऑपरेटेड नैपसैक स्प्रे विल हैव वन हाइड्रोलिक पंप वर्किंग इनसाइड द कंटेनर। वहां पे एक बस टैंकी होता है और एक रोड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एजिटेट करते हैं। ओके, वो हाइड्रोलिक पंप एनर्जी वो पैदा करते हैं ताकि वो आके स्प्रे होता है। ठीक है, देन और एक होता है रॉकर स्प्रेयर। ठीक है, सो द रॉकिंग स्प्रेयर हैज ए पंप असेंबली, एक पंप होता है यहाँ पे, फिक्स्ड ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म विथ एन ऑपरेटिंग लीवर, ए वाल्व असेंबली विथ 2 बॉल वाल्व, ये जो पार्ट है। ओके, रॉकर स्प्रे का पार्ट है। एग्जाम में क्या पूछा था, उसका प्रेशर पूछा था, कितना प्रेशर में काम करे, 14 to 18 kg per centimeter स्क्वायर प्रेशर में काम करते हैं। अगर आपको ओके रॉकर स्प्रे कहाँ यूज कर सकते हैं, ऑर्चर्ड में यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ टॉल
फुट स्प्रे भी यूज होता है, ओके, फुट स्प्रे भी यूज होता है। वहां पे आप क्या यूज करते हैं, रोको स्प्रे एंड फुट स्प्रे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कहता है बकेट स्प्रे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फुट स्प्रे आता है, ये हम ऑर्चर्ड में यूज करते हैं, मतलब लॉन्ग अगर कुछ हाइट में डालना है तो कुछ फुट स्प्रे यूज होता है। यहाँ पे 17 to 21 kg पर सेंटीमीटर स्प्रे से जाता है। यहाँ पे कितना है 14 to 18, यहाँ पे 17 to 21, थोड़ा सा ज्यादा है बकेट स्प्रे से, ठीक है, ताकि वो ज्यादा हाइट जा सके, ठीक है। क्योंकि जब मैंगो का जो पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, अगर कुछ वहां पे स्प्रे करना है तो कैसे स्प्रे करें, तो फुट स्प्रे से हम उसको वहां पे स्प्रे कर सकते हैं। देन आता है हमारा पावर स्प्रेयर, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा यूज होता है। वो जो इंजन लगा रहता है वहां पे 1.2 to 3 HP का लगा रहता है, ठीक है। एयर करंट 2.7 to 9 होता है। और यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटी कितना है उसका, जो फ्लूइड टैंक 7 to 12 लीटर का होता है, 5 लीटर का भी कोई की होता है, ठीक है। 7 लीटर होता है, पर 5 लीटर ही वो वहां पे रहता है। देन ये जो डिस्चार्ज है वो कितना होता है 0.5 to 5 लीटर पर मिनट, एक मिनट में 5 लीटर, मतलब यू कैन सी द वेस्टेज ऑफ स्प्रे फ्लूइड, ओके। बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है स्प्रे फ्लूइड, इसलिए फार्मर्स दे डोंट फॉलो। अगर बहुत बहुत बड़ा एरिया है, 1 हेक्टर 2 हेक्टर लैंड है, वहां पे पावर स्प्रे यूज करते हैं क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। देन आता है हमारा बैटरी और यूएलबी स्प्रेयर, ओके। अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर भी अभी आ रहे हैं, मतलब न्यू आ रहे हैं, बैटरी ऑपरेटेड स्प्रे आ रहा है, जैसे कि हमने बोला डबल बैटरी अभी वाला आ रहा है। तो वो जो ड्रॉपलेट स्प्रेयर है उसको हम फाइन स्प्रे कब बोलेंगे, जब 100 to 250 माइक्रोन होगा। मिस्ट स्प्रेयर 50 to 100 एंड 0.1 to 50 इज एरोसोल्स, मतलब पूरा धुआं दिखेगा आपको, ओके। वो उतना मतलब एटमाइज कर देगा, आपको पूरा धुआं की तरह दिखेगा, ओके। तो इस होता है ये देख लीजिए, इन ए डे ऑफ 8 आवर अबाउट 8 हेक्टर कैन बी कवर्ड इन अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे अगेंस्ट 3 हेक्टर विद पावर स्प्रे। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है मेरे हिसाब से। अगर हम पावर स्प्रे यूज कर रहे हैं तो वो 3 हेक्टर कवर करता है 1 घंटे में, पर अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे में हम कितना कवर कर सकते हैं 8 हेक्टर, ओके। ये एक बहुत ही एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है, तो ये आ सकता है, आप याद रख सकते हैं। एक होता है ना हमारा जो स्प्रे वॉल्यूम के हिसाब से है, अल्ट्रा लो वॉल्यूम हाई वॉल्यूम से, अगर आपका 450 से 450 लीटर से अगर आपको ज्यादा स्प्रे होता है तो उसका हम बोलते हैं हाई वॉल्यूम स्प्रे बोलते हैं। और उसका जो बीच होता है 100 टू ये, उसका बोलते हैं मीडियम लो वॉल्यूम बोलते हैं, लो टू मीडियम बोलते हैं। और लेस देन 5 लीटर और 4.5 टू अगर कम है तो उसका हम बोलते हैं अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखना है। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि स्प्रे इक्विपमेंट से जुड़ा है। फॉर एग्जांपल पंप एफिशिएंसी कितना होना चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितना होना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इसका बस देख लेना एक बार फॉर्मूला। आता है हमारे जो पार्ट्स होते हैं स्प्रे इक्विपमेंट में, जो कि मेनली क्या होता है, नोजल ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो जो कि हार्ट होता है, ओके। हार्ट होता है, हार्ट ऑफ द स्प्रे हम बोलते हैं नोजल को, जो कि ड्रॉपलेट्स को एटमाइज करने में हेल्प करता है और डिस्पर्स करने में मदद करता है, मीटराइज करता है, मतलब कम डालना है या ज्यादा डालना है, रेट कितना होता है, स्लो रेट में डालना है या ज्यादा रेट में डालना है। देन हाइड्रोलिक मोमेंटम ये पैदा करता है, ठीक है। देन जो टाइप ऑफ नोजल भी पाया जाता है, फॉर एग्जांपल एडजस्टेबल नोजल, मतलब इस नोजल को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। अगर हम इस दिशा में ना डाल के उस दिशा में अगर डालते हैं तो उसको हम एडजस्ट करते हैं। आप देखिएगा जो हमारा जो वॉशरूम में लगा रहता है पाइप से, वो भी एडजस्टेबल होता है, ओके। वो भी एडजस्टेबल, बहुत आसान होता है, ऐसा ना एक एडजस्ट कर लिए इस तरह का होता है, इस तरह, मतलब जिस दिशा में आप चाहिए वो आप कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। सो दैट इज कॉल्ड एज एडजस्टेबल नोज। बहुत ही हेल्पफुल है ये। मोस्ट सुटेबल स्प्रेइंग टारगेट्स व्हिच आर नॉट विद इन द रीच ऑफ ह्यूमन। अगर मुझे वहां पे स्प्रे करना है और कुछ है वॉल से जो कि मैं मतलब जाके नहीं कर पाऊंगा, तो हम क्या करें, एडजस्टमेंट नोजल यूज करके वहां पे स्प्रे कर सकते हैं, वो हेल्पफुल है। गिव्स ए वाइड एंगल होलो कोन टू स्ट्रेट solid stream, that is it gives a jet to cone type spray
पैटर्न, उसका स्प्रे पैटर्न क्या है, होलोकोन है, ओके ऐसे, ओके होलोकोन से वो जाता है। डिफिकल्ट टू कैलिब्रेट एज द फ्लो एंड ड्रॉपलेट्स इज वेरी वाइडली विद द नोजल एंगल, ओके हम इसको कैलिब्रेट करना बहुत ही मुश्किल है। देन आता है डबल स्विल स्प्रे नोजल, ओके सुटेबल फॉर हाई वॉल्यूम एप्लीकेशन, ओके आपका बस उसका जो पॉइंट होता है जो कि आपको याद रखना है वही याद रखिए, क्योंकि बाकी सारा अपना एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। देन आता है हमारा होलोकोन, ठीक है क्यों नहीं जा रहा है। देन आता है हमारा एक जाओ भाई जाओ, ठीक है होलोकोन नोजल होता है हमारा, ओके होलोकोन nozzle you can see in this, okay the spray is like that, it is forming a cone shape with the hole in the middle, okay तो उसको हम क्या, these are used primarily where plant foliage penetration is essential, okay जहाँ पे हम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज करेंगे वहां पे क्या होता है कि foliage penetration is most important for the effective control of insect and disease control। तो आपको पता चल गया इंसेक्टिसाइड एंड फंजिसाइड अगर हम स्प्रे करेंगे तो कौन सा नोजल यूज करेंगे, होलोकोन यूज करेंगे। प्रेशर कितना होता है 40 to 80 psi होता है। फ्लैट फैन नोजल these are used largely for broadcast spraying where foliar penetration and coverage are not essential। जब हम एक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड स्प्रे करेंगे ना तो हम नहीं देखेंगे बस कितना पेनिट्रेट हुआ, बस हम स्प्रे करते चले जाएंगे, ठीक है तो यहाँ पे प्रेशर कितना होता है 15 to 30 psi होता है। देन फ्लोट जेट नोजल्स these are ideal for high application rate and speeds because they produce a wide angle flat fan pattern, ठीक है जो अगर कुछ हर्बिसाइड आपको बहुत ही ज्यादा डालना है तो फ्लोट जेट नोजल से आप यूज करें। तो हर्बिसाइड स्प्रे करने के लिए फ्लैट फैन नोजल या फ्लोट जेट नोजल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा एडजस्टेबल नोजल, सिंगल स्विvel नोजल, ये बस आपको ये जो है ना ये होता है ना उसका ही मॉडिफाई हम ये एडजस्टेबल मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। सिंगल स्विvel नोजल होता है, डबल एंड डबल फिक्स नोजल भी होता है। देन आता है हमारे हर्बिसाइड कैलकुलेशन, ओके मोस्ट इंपोर्टेंट वीड कंट्रोल एफिशिएंसी। if you are going to do research in the future तो अगर आप वीड का अगर रिसर्च लिए तो ये दोनों आपको कैलकुलेट करना ही करना है, वीड कंट्रोल एफिशिएंसी। तो होता क्या है फॉर्मूला, वीड डायमीटर इन कंट्रोल प्लॉट माइनस वीड डायमीटर इन ट्रीटेड प्लॉट डिवाइड बाय वीड डायमीटर इन कंट्रोल इनटू 100, ओके अगर किसी ऑपरेशन आप लिया या किसी हर्बिसाइड आप अप्लाई किए तो क्या हुआ, एक कंट्रोल प्लॉट आता है वहां पे कितना वीड आया और आप एक प्लॉट में जो ट्रीट किए जो हर्बिसाइड से वहां पे कितना डायमीटर वीड का जो डायमीटर कितना है, पॉपुलेशन कितना है। अगर आप देखें तो अगर बहुत ही ज्यादा वीड पॉपुलेशन है ट्रीटेड प्लॉट में भी तो कोई चांस ही नहीं, उसका एफिशिएंसी बहुत कम है। अगर डायमीटर कम है तो उसका एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा है। तो दिस इज द फॉर्मूला वी कैन यूज इट एंड बहुत बार आता है एग्जाम में, याद रखना। वीड इंडेक्स में क्या होता है, यील्ड दिखा जाता है, क्रॉप यील्ड ऑन कंट्रोल माइनस क्रॉप यील्ड इन ट्रीटेड डिवाइड बाय क्रॉप यील्ड इन कंट्रोल इनटू 100। तो अगर आपको कभी आप भूल गए एग्जाम में तो आप याद कैसे कर सकते हैं, हाई माइनस लो डिवाइड बाय हाई इनटू 100। जो भी आपको वैल्यू दिया गया है एग्जाम में तो एक वैल्यू तो हाई होगा और एक वैल्यू लो होगा, तो हाई से लो वैल्यू को माइनस कर दो और डिवाइड बाय हाई कर दो इनटू 100 कर दो, आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है वो वाला आपका आंसर है। एक शॉर्टकट है, ओके एक शॉर्टकट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रॉब्लम दिए गए, ओके आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ये वाला, ओके ताकि अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कर लेते हैं, ठीक है ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। इफ द रेट ऑफ एप्लीकेशन पर हेक्टर 0.75 kg AI per hectare and concentration of herbicide 75 then amount of commercial product, देखिए यहाँ पे कितना है 75% WP, तो 100 में 75 है, ठीक है तो 1 में कितना होगा 1/75, कितना चाहिए 0.75 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 1 हेक्टर के लिए। आसान है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है, ठीक है।
तो ऐसे करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एरिया दिए, मतलब विड्थ दिए, मतलब स्वैप विड्थ दिए, जो हम स्प्रे करते हैं ना, तो जो वाई एंगल है, तो स्प्रे का जो एंगल है वो कितना तक कवर करता है, उसको हम बोलते हैं स्वैप विड्थ। मैंने बता भूल गया था, उसको हम बोलते हैं स्वैप विड्थ। ओके, तो क्या करना है, इसको आप मल्टीप्लाई करके एरिया निकालना है पहले, तो उस देन वी हैव टू कन्वर्ट इन द हेक्टर। ओके, ये जो स्प्रे फ्लूइड वॉल्यूम यूज होता है इतना मीटर स्क्वायर के लिए, तो 1 हेक्टर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर के लिए कितना यूज होता है, ये बहुत आसान है। देन यहाँ पे हम दिए थे पॉन्ड के वजह दिए थे। ओके, तो ये आप देख लेना, अगर कोई डाउट है तो मुझे मैसेज करना, आई विल टेल यू। ठीक है, so that's all for today's class। एंड और एक होता है कि सिलेक्टिविटी इंडेक्स होता है, बताना भूल गए, और एक होता है सिलेक्टिविटी इंडेक्स। तो याद रखिए, अगर सिलेक्टिविटी इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो दैट हर्बिसाइड इज मोर सिलेक्टिव, मोर सेफर। ओके, अगर सिलेक्टिव इंडेक्स कम है तो दैट हर्बिसाइड इज मोर टॉक्सिक, मतलब सेफ नहीं है। ठीक है, किसी का कोई डाउट है पूछ लीजिए अभी। You can ask me now. Any doubt, guys? We can discuss now. कोई डाउट है? No. कोई डाउट नहीं, समझ में आएगा सब कुछ। विनय, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। समझ में आ गया आपको? यस सर। ओके, देन राजेश, यस सर। आपका एक क्वेश्चन था ना कल का, हाँ यस सर। वो हम डिस्कस करेंगे।